Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to lecture number 15 of Software Engineering 1 CSC 291. In today's lecture we will be covering collaboration diagrams, and if you guys remember from the last lecture we discussed that in the category of interaction diagrams there are two kinds of diagrams. Number one was system sequence diagrams and number two was collaboration diagrams. We have had two lectures on system sequence diagrams, and in today's lecture we will try to differentiate between collaboration diagrams and system sequence diagrams, and we will try to see that in UML when we need to draw these collaboration diagrams, then what are the things that we can, how do we actually draw these diagrams, and what are the ways in which we can annotate these diagrams. The first thing which I said, that how we will try to differentiate between collaboration and system sequence diagrams, it's actually not, it's a very difficult job because they are very closely related. The only difference is that in collaboration diagrams we try to record interaction between objects and we are not concerned with the time ordering, whereas in case of system sequence diagrams, one of the key things was, other than recording the interaction between objects, that we get to know the time ordering of the interactions between different objects. Now before starting today's lecture, let's have a quick recap of what we covered in our previous lecture. So in the previous lecture, in fact in the last two lectures, we discussed system sequence diagrams. We started off with a very informal definition of system sequence diagram, that what do? They try to basically model scenarios and they try to record interaction between different objects. Then we saw कि system sequence diagrams के participants क्या होते हैं. We identified कि there is always a found message. So we saw कि system sequence diagram के अंदर एक आपके जो इसके participants हैं, the key ingredients of system sequence diagrams, we have basically a found message जो कि आपके एक एरो आपके सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम को स्टार्ट करता है, ठीक है. देन द सेकंड थिंग वी हैव इज क्लासेस, जिनके फिर हम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी. एंड द थर्ड थिंग इज द मैसेजेस, ठीक है. इन द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वी सॉ कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग दीज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. एक तो ये कि हम सिर्फ क्लास का नाम लिखते हैं, उनको हम कहते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स. बट इफ वी थिंक कि बाय राइटिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट अ सिनेरियो बिकम्स क्लियर, तो वी राइट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल. और तीसरी केस क्या होता है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं. जब हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं तो वो किसी क्लास को बिलोंग नहीं करता, ठीक है. तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल. एंड देन वी हैव मैसेजेस. मैसेजेस के अंदर वी सॉ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैसेज नेम. अगर मैसेज नेम ही नहीं है तो यू विल नॉट नो व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, एंड देन दिस वुड बी रॉन्ग, ठीक है जी. फिर हमने देखा कि मैसेजेस के अंदर हम और बहुत सी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं. वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन इंक्लूड इन द मैसेजेस इज पैरामीटर्स, ठीक है. और मैसेजेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव दीज गार्ड्स विच आर बेसिकली कंडीशंस, ठीक है. देन वी कैन हैव आइटरेशंस, जो कि हम ये स्टैटिक से शो करते हैं. देन वी कैन हैव then it is followed by the message name, और message name के अंदर we have this list of parameters. Then we saw in that how do we draw these diagrams in UML, और हमने देखा कि हमारे horizontal axis के ऊपर आप basically सारे objects draw कर देते हैं, और हर object की जो life line होती है it is represented by a dashed line, और messages को हम arrows के साथ show करते हैं, and the return messages they are optional. In the messages we saw another thing, there are two kinds of messages, one synchronous messages and one asynchronous messages. Synchronous messages, as we already know, कि whenever there is a synchronous call, तो जो caller है वो block हो जाता है जब तक कि उसको result नहीं आता. And in case of asynchronous call, the caller is not blocked and he can do other things. And towards the end of the second lecture on system sequence diagrams, and in fact in the first lecture as well, we did some examples, and I introduced you to the concept of conditions in the system sequence diagrams. If you have an alternative course of interactions that would happen if a certain condition is true, so you can normally differentiate that area with an optional box, क्योंकि आपको बताएगा कि ये काम हमारा इस सिनेरियो में हर दफ़ा नहीं होगा, लेकिन this would happen only in case this condition is true. Okay, so that was what we covered in the last two lectures, and in today's lecture we will see what collaboration diagrams are, when do we draw them, and why do we draw them, and then we will try to cover the UML notation for these diagrams. And during the lecture we will have various examples which will help you understand how to draw a collaboration diagram and what information do they give you. Okay, always remember one of the key things that I said, I think in the first lecture on software engineering of this course, that each diagram, it should help you, or it should increase your understanding of the system. If a diagram does not do that, then you do not need to make that diagram. Okay, so
if somebody says that you need to make collaboration diagram, then first question that you should ask is that do I need to make these diagrams, or will this diagram would help me in understanding something which I do not know, or this is just repetition of the same thing that I've already done. So we will try to discuss these things, that actually when do we need to make these collaboration diagrams. Okay, so what is the collaboration diagram? It shows a particular sequence of messages exchanged between a number of objects. Okay, and this is what sequence diagrams do too. You know, this is something interesting. When I said we will try to differentiate, like in the first line which we have read about collaboration diagram, it does the same thing as the system sequence diagrams. So what is the difference? The sequence diagrams are used to model the flow of control by time ordering. ओके ये चीज़ बड़ी की है दोनों के अंदर, डिफरेंस के अंदर, कि जब भी आपके लिए टाइम ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वेन एवर टाइम ऑर्डरिंग इज देयर, तो ड्रॉ दीज सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स. ठीक है जी. दे आर बेटर फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द ऑर्डरिंग ऑफ द मैसेजेस, नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स आइटरेशन एंड ब्रांचिंग. ओके जी, हमने ये डिस्कस किया था कि वी कैन रिप्रेजेंट आइटरेशंस in a system sequence diagrams, लेकिन they are not ideal to do that. ठीक है, और when you want to, आप interactions के अंदर जब ये iterations और branching show करना चाहते हो, तो then collaboration diagram is the answer. Okay जी. And similarly, collaboration diagrams, they are used to model flows of control by organization. ठीक है जी. Good at showing the static connections among the objects while demonstrating a particular sequence of messages at the same time. लेकिन इसके अंदर टाइम ऑर्डरिंग वाली चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है. ठीक है, यानी कि यू कैन डू दैट. आप मैसेजेस को अगर नंबर कर दें तो शायद आपको उससे ये पता लग जाए कि कौन सा मैसेज पहले हो रहा है, कौन सा उसके बाद होगा, एंड देन व्हाट मैसेज फॉलोज दैट. लेकिन इसके अंदर द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू जस्ट ट्राइंग टू रिकॉर्ड द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन यू आर नॉट ट्राइंग टू डू you're not interested in time ordering, because it is not convenient for anybody who sees a collaboration diagram to actually figure out कि time ordering क्या होगी, even if you have numbered it, क्योंकि बहुत ज़्यादा messages different objects के दरमियान जा रहे हैं. Okay, so collaboration diagram, what they are, they show the relationship between objects and the order of messages passed between them. The objects are listed as rectangles and the arrows indicate the messages being passed. अभी तक हमने इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा. सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स आपके थे, दे आर रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल्स. ठीक है, अगर आपको याद हो कि जो इस तरह के हम बॉक्सेस बनाते थे, वी यूज टू हैव आवर क्लासेस और द ऑब्जेक्ट के नाम हम यहाँ पे लिखते थे. ठीक है, दिस इज द सेम विद कोलैबोरेशन डायग्राम्स, वी डू देम इन द सेम वे. एंड सिमिलरली द मैसेजेस बिटवीन टू क्लासेस, दे आर डन थ्रू दैट. और इसी तरह जिस तरह मैसेजेस का नाम उसमें लिखते थे, वी हैव टू राइट द मैसेज नेम इन केस ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम्स. ठीक है जी. द नंबर्स नेक्स्ट टू द मैसेजेस आर कॉल्ड सीक्वेंस नंबर्स. जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हम कोलैबोरेशन के अंदर भी और सीक्वेंस के अंदर भी हम हर मैसेज के एक नंबर के साथ उसको एनोटेट कर सकते हैं, जो कि बताएगा कि कौन से सीक्वेंस में ये मैसेज हुआ है. ठीक है, व्हाट डू दे शो? दे शो द सीक्वेंस ऑफ द मैसेजेस एज दे आर पास्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. दे कन्वे द सेम इंफॉर्मेशन as a sequence diagram. ठीक है जी, but focus on object roles instead of the time sequence. ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि we are saying कि collaboration diagram के अंदर हमें object sequence के अंदर इंटरेस्ट है. ठीक है, कि ये पहला मैसेज इस ऑब्जेक्ट से इसको गया, तो इस मैसेज ने फिर अगला मैसेज किस ऑब्जेक्ट को भेजा, यानी कि वी वांट टू नो कि किस सीक्वेंस के अंदर ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, वेयर एज इन द सीक्वेंस सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स हमें उस मैसेजेस से कंसर्न था कि कौन सा मैसेज पहले गया, कौन सा बाद में गया, कौन सा उसके बाद गया. वेयर एज इन दिस केस हमारा जो नंबरिंग लगाने का मकसद है, दैट इज वी वांट टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमारा फोकस है. ठीक है, rather than time sequence. Okay जी. So collaboration diagrams, they describe interactions among classes, क्योंकि ये interaction diagrams की एक टाइप है. ये हमने पिछले लेक्चर में किया था कि interaction diagram दो तरह की होती हैं, system sequence and collaboration diagram. तो they show interaction between classes and associations. These interactions are modeled as exchanges of messages between classes through their association. Collaboration diagrams are type of interaction diagrams. Collaboration diagrams contain the following elements. ठीक है, तीन चीजें होती हैं collaboration diagrams के अंदर. Number one, we have class roles, which represent the roles that the objects may play within the interaction. Association roles, which represent the roles that links may play within the interaction. And the message flows, which represents the message sent
between objects via links. Links transport or implement the delivery of the messages. So we have the class roles, ठीक है जी. classes के अंदर क्या है कि जो they represent the role of the objects, ठीक है, इस पूरे flow के अंदर. Then we have those association roles जो कि they basically show कि what role the links will play within this transaction, ठीक है जी. और messages आपके उन links के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है. ओके, एसोसिएशन क्या बताती है डिफरेंट क्लासेस की, कौन सी क्लास के दूसरी क्लास है कैसे रिलेटेड है, ठीक है. और उन एसोसिएशन के ऊपर फिर आप वो मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपकी एक पूरी वॉल की क्लास है, ठीक है. अब वॉल की क्लास की अब एक वॉल के अंदर दरवाजे भी हो सकते हैं, विंडोज भी हो सकते हैं, तो दे हैव एन एसोसिएशन विद द क्लास वॉल, ठीक है. नाउ देयर माइट बी मैसेजेस सेंट थ्रू दैट एसोसिएशन बिटवीन द वॉल एंड द विंडो, लेट्स से. तो दिस इज आपकी एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं क्लासेस के अंदर, और उन एसोसिएशंस के थ्रू आप उन क्लासेस के दरमियान या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेजेस भेज रहे हैं. एंड वी विल हैव डिस्कशन ऑन व्हाट इज एन एसोसिएशन एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट द एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट क्लासेस इन द कमिंग लेक्चर्स ऑन क्लास डायग्राम्स. ओके जी. सो UML collaboration diagrams, they illustrate the relationship and interaction between the software objects. They require use cases, system operation contracts, and the domain model to already exist. The collaboration diagram illustrates messages being sent between classes and objects, which are instances of classes. A diagram is created for each system operation that relates to the current development cycle. ठीक है जी. यानी कि आप हर जो आपका सिस्टम ऑपरेशन है एक पर्टिकुलर आइटरेशन के अंदर जो आप यूजर को बनाकर दे रहे हैं उसके लिए आप एक कोलैबोरेशन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, विच वुड टेल कि कौन सी क्लासेस और कौन से ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट करेंगे इस पूरे काम को करने के लिए. सो दिस इज काइंड ऑफ फॉर्मली डिफाइनिंग के कोलैबोरेशन डायग्राम होती क्या है. Now this is a very quick example of collaboration diagram. ठीक है, ये जो start है this is actually nothing, this is just saying कि यहाँ से ये diagram start हो रही है. Okay, so we have a user, ठीक है जी. यूजर क्या कर रहा है, द फर्स्ट मैसेज इज पास्ड बिटवीन, ये देखें कि यूजर और कैटलॉग का आपस में कोई एसोसिएशन है, ठीक है, ठीक है. और सिमिलरली देयर इज एन एसोसिएशन, ठीक है, बिटवीन द कैटलॉग एंड रिजर्वेशन, ठीक है. और फिर रिजर्वेशन और यूजर के दरमियान भी एक एसोसिएशन है, ठीक है. दीज आर द एसोसिएशंस. ये जो लिंक्स हैं, ठीक है, ये जो लिंक्स हैं जो दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एसोसिएशंस, ठीक है. और ये हमारे क्या है, क्लासेस है जो बॉक्सेस है. एंड देन दीज नंबर्ड थिंग्स, ये जो नंबर में आ रहे हैं ये वाली चीज़ें, ये जितने भी नंबर्ड आइटम्स हैं दीज आर ऑल मैसेजेस. और एक चीज़ अगर आप देखें कि इन मैसेजेस की हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि कौन सी क्लास से किस डायरेक्शन में कौन सा मैसेज जा रहा है, ठीक है जी. सो द फर्स्ट मैसेज दैट इज गोइंग फ्रॉम द यूजर क्लास टू द कैटलॉग क्लास इज लुकअप, ठीक है. तो इट्स बेसिकली ट्राइंग टू लुक अप फॉर समथिंग इन द कैटलॉग, ठीक है. दो सेकेंड मैसेज आ गया आपके पास कैटलॉग ने ठीक है, दैट इज द ऑफ टाइटल डाटा, ठीक है जी. अब आपका जो तीसरा मैसेज जा रहा है कि इफ इट्स नॉट अवेलेबल तो आपका रिजर्व कर दे उसको आपके लिए, ठीक है. और रिजर्वेशन में जैसे ही आपका टाइटल रिटर्न हुआ, ठीक है, ठीक है, कैटलॉग से टाइटल रिटर्न का मैसेज जैसे ही आपके रिजर्वेशन को चला गया, ठीक है, तो आपका फिफ्थ मैसेज क्या जनरेट हो रहा है कि आप टाइटल अवेलेबल हो गया, ठीक है. जब आपका टाइटल अवेलेबल हो गया तो आपने अपनी रिजर्वेशन हटा ली है, ठीक है. और जैसे ही रिजर्वेशन आपने हटाई और साथ ही आपने इस टाइटल को बोरो कर लिया, आप कैटलॉग में किसके पास चला गया कि इस यूज़र के पास. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो हम यूज़र ए के लिए बना रहे हैं, ठीक है. तो जब ये स्टार्ट हुआ तो ए ने क्या किया, ए बेसिकली सर्च फॉर समथिंग इन द कैटलॉग एंड देन यू गेट द टाइटल डाटा, ठीक है. जब आपको पता लगा कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या किया, यू ट्राई टू रिजर्व दैट पर्टिकुलर बुक, ठीक है. दिस कैन बी एग्जाम्पल ऑफ द लाइब्रेरी कि एक यूज़र जाता है वो कैटलॉग में एक बुक ढूंढता है, जब उसको बुक का टाइटल वगैरह मिल जाता है तो ही गोज फॉर रिजर्व. जब उसको और पता लगता है जी बुक अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, कैटलॉग में आपके रिजल्ट के अंदर डिस्प्ले हो गया, आपको पता लगा बुक अवेलेबल नहीं है बट यू आर ट्राइंग टू रिजर्व इट. सो इन रिजर्वेशन यू आर एक्चुअली रिजर्विंग दैट पर्टिकुलर टाइटल. ये मैसेज 3 वो बता रहा है. चौथे मैसेज में आपको पता लग जाता है जैसे वो बुक रिटर्न होगी आपकी कैटलॉग अपडेट हो गई, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन के अंदर एक लिस्ट है उन सारी बुक्स की. जैसे वो एक पर्टिकुलर बुक वापस आएगी तो कैटलॉग को पता लग गया यार बुक वापस हो गई है, ठीक है. रिजर्वेशन से कैटलॉग को एक मैसेज आया, रिजर्वेशन से एक मैसेज यूजर को चला गया कि वो बुक वापस आ गई है, टाइटल अवेलेबल. तो
यूजर ने फिर क्या किया, यूजर ने 6th मैसेज जो बोरो टाइटल का है वो नीचे कैटलॉग को भेजा। अब कैटलॉग में अपडेट हो गया कि यूजर ए के पास अब ये बुक चली गई। सो इफ समबडी फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट बी ऑफ द यूजर क्लास कम्स इन, तो ही वुड बेसिकली फॉलो द सेम थिंग, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारा ये जो मैसेजेस का सीक्वेंस है, ठीक है, 1 2 3, ये जो भी हमारा मैसेजेस का सीक्वेंस है, इसमें हमारा इंटरेस्ट क्या है, इसमें हमारा इंटरेस्ट क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो फ्लो ऑफ मैसेजेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है जी। वी आर नॉट लुकिंग फॉर टाइम ऑर्डरिंग, टाइम सीक्वेंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं है हमारा, ऑब्जेक्ट सीक्वेंस के अंदर, जैसे कि किस सीक्वेंस के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैसेजेस हमें यही बता रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स इस सीक्वेंस में एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, रादर देन इसको देख के हमें ये नहीं पता लगा कि टाइम ऑर्डरिंग क्या है। ऑब्वियसली टाइम ऑर्डरिंग भी इसी के साथ एसोसिएट की जा सकती है, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट व्हेन वी आर ड्राइंग दीज कोलैबोरेशन डायग्राम्स एंड व्हेन वी आर नंबरिंग दीज मैसेजेस इन अ कोलैबोरेशन डायग्राम। Okay ji, so let's look at formally that what are the different entities in a collaboration diagram. So we have these objects, okay, it's same, the representation of the objects is the same as we used to do in the system sequence diagrams. Then we have these messages, ठीक है, और ये messages हमारे numbered होते हैं, ठीक है, and then we have these links, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि we have an example जिसके अंदर we are entering an order, ठीक है। तो पहली जब इस विंडो पे है तो यू आर प्रिपेयरिंग दिस ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर है, आपने ऑर्डर को प्रिपेयर किया, ये बता रही है कि देयर इज एन आइटरेशन, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑर्डर आपने स्टॉक आइटम के अंदर गए, यू वांट टू चेक कि आपके स्टॉक के अंदर वो चीज़ पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, ठीक है। अगर आपका ये चेक ट्रू सही आ गया, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने री ऑर्डर कर दिया उस आइटम को, ठीक है, और अदरवाइज यू डिलीवर दैट आइटम, ठीक है। यानी कि अगर वो आपके स्टॉक में चीज़ अवेलेबल है तो आपने क्या किया, उसको डिलीवर कर दिया आइटम को, अदरवाइज यू वांट टू रीऑर्डर अगर आपके स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। बट द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस हियर इज द सिंटैक्स ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है जी। अब ये वाली जो चीज़ है ये सेल्फ कॉल है, जो कि हमने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर भी देखी थी कि देयर कैन बी सेल्फ कॉल्स to a certain object, so we can also do that in a collaboration diagram, but this is done in this way. और ये जो numbers हैं, ठीक है, they do show the time ordering between messages, लेकिन again our focus is not on that, our focus is on understanding कि ये objects किस sequence में आपस में communicate कर रहे हैं। अच्छा जी, collaboration diagrams के just see के how they link up with the class diagrams and the sequence diagrams. अच्छा जी, class diagrams they indicate what classes are part of our system, what they offer and how they relate, but they don't tell us how they communicate, ठीक है। कि classes हमें ये तो बताती है कि हमारे system के अंदर कौन सी classes exist करती हैं, ठीक है, how are they related to the other classes, ठीक है। जिस तरह हम CRC कार्ड्स भी बनाते हैं तो उसमें हमें ये पता लग जाता है कि जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स और कोर्स की आपको एग्जांपल दी थी रजिस्ट्रेशन के केस में, कि व्हेनेवर अ स्टूडेंट हैज टू रजिस्टर तो ही वांट्स टू नो कि ये कोर्स का टाइम टेबल क्या है और कोर्स को पढ़ा कौन रहा है, ठीक है। नाउ वी डू नो दैट दीज टू क्लासेस आर रिलेटेड, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन डायग्राम्स शो हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट एंड देयर रोल्स, ठीक है। दे आर वेरी सिमिलर टू सीक्वेंस डायग्राम्स, एक्चुअली दे आर कंसिडर्ड एज अ क्रॉस between the sequence diagrams and the class diagrams, ठीक है। Sequence diagrams are arranged according to time and collaboration diagrams represent the structural organization of objects, और इन दोनों diagrams को हम क्या कहते हैं, interaction diagrams, ठीक है। Now this slide was interesting कि हमें इसमें पता लग गया purpose, ये class diagram हमें बताती है हमारी classes क्या क्या है, and we do know when we make a class diagram of a system, या अपने सॉफ्टवेयर की हम class diagram बनाते हैं, हमें पता लग जाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स कौन सी क्लासेस किस तरह रिलेटेड है, लेकिन जो इंटरेक्शन है ये नहीं पता लगता कि आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे और उसकी ऑर्डरिंग क्या होगी, किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो फॉर दैट पर्पस वी ड्रॉ दीज कोलैबोरेशन डायग्राम्स। ओके जी, नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम्स, ठीक है, एंड लेट्स हैव क्विकली अ लुक एट व्हाट वी आर डूइंग हियर। Okay, this is another example of collaboration diagram, and here we are basically trying to add subject, we are trying to draw this particular scenario
Okay, so we have a URS database, okay, and we are trying to add another subject into this database. So what is happening, we have a, first of all we have a process command, ठीक है जी, और हमारे पास जो भी कमांड आई सबसे पहला हमने इस database के अंदर क्या किया, हमने उस कमांड को समझना है कि वो कमांड है क्या, ठीक है. So this is the first thing that we are doing, which is a self call, ठीक है. अब सेकेंड कॉल जो है वो हमने चेक करना है कि जो भी हमारे पास ये कमांड आई थी, ठीक है, ऐड सब्जेक्ट की, अगर ये जो कमांड ऐड सब्जेक्ट की आई है तो फिर इस वाली क्लास के पास जाना है, क्योंकि पहले हमारे पास कमांड आई, हमने उस कमांड को पार्स करना है कि ये रिक्वेस्ट किस चीज़ की आई है, देन वी विल गो टू दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है. अगर तो वो इसी का है तो हमने तीसरा इसको क्या मैसेज दे दिया, हमने कह दिया जी अब इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है. जब एग्जीक्यूट करने की बात की तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमने सब्जेक्ट ऐड करना है उसकी कोई आईडी और उसका नाम क्या, और हमने उस सब्जेक्ट को ऐड कर दिया, ठीक है. न्यू का क्या मतलब है कि हमने नया एक उसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है. इसी तरह इसको भी नोटिफिकेशन चला गया कि वो डाटाबेस के अंदर भी अपडेट हो जाए. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल सिनेरियो कि हमने क्या किया कि हमारे पास पहले एक कमांड आई, database के पास एक query आई, and we try to figure out what the query is and what we are trying to request, and depending on the request we go into that particular object and we created a new object जिसमें हमने एक नया subject create किया, ठीक है, which has a separate ID and a separate name, और we are updating our database as well, जिसको हमने कहा है कि जी subject 1 जो कि हमने यहाँ पे create किया है, ये हमारे database के अंदर एक नई चीज़ create हुई है, ठीक. तो इसके अंदर although we knew कि in our system we have these classes and these classes they are related to each other, लेकिन in what order they communicate with each other that we did not know, and through this collaboration diagram now we know okay what is the sequence in which these objects they are communicating with each other, ठीक है. So first of all process command की request आती है, then we parse the command to try to understand कि what is this command, and if the command is certain then we go to that particular class. जिस तरह इस particular case के अंदर add subject की थी तो we go to add subject command processing class, or then we execute that command. On the basis of that we create a new instance of a class, ठीक है, और उसी जो हमने नया इंस्टेंस क्रिएट किया है we have to update our database as well on that, ठीक है. तो 3.1 और 3.2 के अंदर we are basically 3.1 के अंदर we are creating new instance और 3.2 के अंदर we are updating our database. ओके जी. अब अगर इसी की बेसिस के ऊपर आप अपनी क्लास का स्ट्रक्चर देखें कि क्या होगा, ठीक है. जिस तरह हमारी जो क्लास है ये URS database, ठीक है, उसके अंदर हो क्या रहा है, we have these वेरिएबल्स, ठीक है. ये दोनों हमारे तीन हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं, ठीक है. एक हमारा है जो कि कमांड को पार्स करता है, ठीक है, और दो हमारे हैं, एक तो कमांड N और कमांड A, ठीक है, दो हमारे ये मेंबर्स, और तीसरा प्रोसेस कमांड का है विच इज़ अ पब्लिक फंक्शन, ठीक है. और प्रोसेस कमांड के अंदर पहले वो पार्स कमांड करता है एंड देन इट बेसिकली कॉल दिस प्रोसेस कमांड. तो देखेंगे दिस कोलैबोरेशन डायग्राम how helpful is that we can actually know the internals of our class when we draw these collaboration diagrams, ठीक है, क्योंकि हमें पता लग जाता है. अब इस फंक्शन को पब्लिक बनाने का मकसद क्या है कि we know कि the other classes they would be interacting with this class through this process command function, ठीक है. जिस तरह ये अगर आप देखें कि ये process command की कॉल आई है इसको बाहर से, ठीक है. now this is an external call and that's why this function is public. हमने process command को public क्यों किया है, क्योंकि the call is coming from somewhere else, it is not an internal call. और internal call कौन सी है, parse command की, जिसके ऊपर हमने देखा कि ये internal call है, ये self call थी, ठीक है. तो self call क्या है, it's basically a private member, जो कि parse command है, ये हमारा private member है. So you can see through these diagrams we actually know the kind of communication that different classes would have, and through this communication we can annotate the structure, और हम अपनी classes को private public members भी define कर सकते हैं, क्योंकि we actually know कि किस तरह की कॉल है उसकी बेसिस पे हमें पता लग जाती है whether some member would be private or public, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और इसी को हम अगर आगे लेकर चलें, जिस तरह हमारा डाटाबेस था, ठीक है, और डाटाबेस के अंदर हमारी ये दो चीज़ें थी, ठीक है. अब जब आप पार्स कमांड कर रहे हैं तो इफ़ कमांड n इज इक्वल टू ऐड सब, जो कि हमने कहा था कि ये ऐड सब कमांड है, ठीक है. तो एक नया इंस्टेंस इन्होंने क्रिएट कर दिया इसका, ठीक है, ठीक है. नाउ वी हैड अ क्लास विच इज बेसिकली जस्ट फॉर प्रोसेसिंग दिस ऐड सब कमांड, ठीक है. हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये कमांड आई थी CMDA, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने एक नया पूरा एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर दिया A कर. ओके जी. सो कोलैबोरेशन डायग्राम हमें क्या बताती है, इट शोज द ट्रांजिएंट लिंक्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दो तरह के लिंक्स होते हैं, वन इज कॉल्ड सेल्फ लिंक, ठीक है, अ मैसेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इटसेल्फ, लोकल, अ मैसेज सेंट ड्यू टू द ऑब्जेक्ट बीइंग डिफाइंड एज अ लोकल वेरिएबल इन द मेथड, और पैरामीटर, द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाज सेंट एज अ पैरामीटर टू द मेथड, और ग्लोबल, द ऑब्जेक्ट इज ग्लोबल, ठीक है। Now this is very important. You have self, a message from object to itself, ठीक है, local, a message sent due to the object being defined as the local variable in the method. Third is the parameter, the object reference was sent as a parameter to the method, ठीक है, and the object is global. Okay जी. So in terms of the UML, we will try to cover these four following things. This was the second thing in the list of contents for today's lecture, that we will see the UML, how in the UML we draw these collaboration diagrams. We will see the collaboration diagram semantics, we'll see the notations, we'll do some examples, and we'll discuss some of the issues with collaboration diagrams. Okay ji. Now in the broad category of models that we do in software engineering, the collaboration diagram, it falls, it is known as one of the diagrams that we create when we do the behavioral modeling, ठीक है. So it's the member of the behavioral group of diagrams as well as the sequence, state chart and activity diagrams. Okay जी. And the behavioral diagrams and the description includes the static structural description on the participants, which is objects or classes in this case, dynamic descriptions on the execution of actions, which is the interaction between objects in this case, and the set of the participant interactions which are meaningful in a context. और जो पूरी की पूरी आपकी जो स्टैटिक और डायनामिक मेंबर्स को मिलाते हैं जब आप, ठीक है, जिस तरह हमारे केस के अंदर जब हम क्लासेस और उसके दरमियान इंटरेक्शंस बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा सिस्टम कोलैबोरेट कैसे कर रहा है, ठीक है जी, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे सिस्टम के आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है. व्हाट इज द पर्पस, ठीक है जी, ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम? It models the exchange of messages between objects to achieve something. They can be attached to operation or use case. Class, parameterized collaboration can be reused, can assist in defining the structural aspects of a design pattern. Okay, this is very interesting. Although we are not covering design patterns here, like as I said to you when we discussed the last example, कि through these collaboration diagrams we can define the structure. ठीक है, अपने जो हमारे वी कैन एक्चुअली डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ इवन कंप्लीट क्लासेस, ठीक है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको मैसेजेस के ऊपर सेल्फ कॉल जा रही हैं, कौन सी पैरामीटराइज कॉल जा रही है, तो वी गेट टू नो या कौन से ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. तो इसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं और कौन से फंक्शंस हमारे पब्लिक होंगे, कौन से प्राइवेट होंगे, ठीक है. सो वी कैन डिफाइन द डाटा स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ दीज कोलैबोरेशन डायग्राम्स. ओके जी. सो कोलैबोरेशन डायग्राम दे रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन, ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता लगी शुरू में क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इंटरेक्शन डायग्राम्स दैट वी हैव कवर्ड. द अदर वन इज सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स. कोलैबोरेशन में होता क्या है कि इट शोज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. इंटरेक्शन क्या होती है जी? सेट ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज इन अ कोलैबोरेशन टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट. और ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे शो करते हैं? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि रेक्टेंगल्स के थ्रू हम शो करते हैं, ठीक है जी. ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम ऑप्शनल होता है, इट स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर, और क्लास नेम मैंडेटरी होता है, स्टार्ट्स विद एन अपर केस लेटर. ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय लाइंस एंड यूजर स्टिकमैन कैन अपीयर, ठीक है जी. अच्छा जी, ये चीज़ें ज़रा ज़हन में रखिएगा कि ये हमने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर भी की थी कि ऑब्जेक्ट्स को हम हमेशा इस स्क्वायर रेक्टेंगल से शो करते हैं, और जो चीज़ इसके अंदर मैंडेटरी है वो है क्लास का नाम, ठीक है. ये जो क्लास नेम है ये आपका हर दफ़ा होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी, ठीक है. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का नाम आना है दिस इज ऑप्शनल, एंड दिस वाज द केस इन सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम एज वेल, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम था दैट वाज ऑप्शनल. ओके जी. और मैसेजेस कैसे होते हैं? मैसेजेस आर लेबल्ड with C and Java function calls, follows by round brackets, and can have parameters and return values, are followed by an arrow to show direction. Internal messages are numbered starting from 1, ठीक है जी. पहली बात तो ये है कि जो मैसेजेस होते हैं they have labels, ठीक है, as we discussed in system sequence diagram, that is a must. फिर जिस तरह C और Java की फंक्शन कॉल्स होती हैं कि हर मैसेजेस के बाद उसकी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होती है, ठीक है, तो हम कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जी पैरम 1, पैरम 2, जो कि बता रहा है कि इस मैसेज के ये पैरामीटर्स हैं. और फिर हम मैसेजेस को सीक्वेंस नंबर के साथ एनोटेट कर देते हैं, ठीक है, जो कि बताते हैं कि कौन सा वाला इस पूरी इंटरेक्शन के अंदर जो हम कोलैबोरेशन हमें शो कर रहा है, पहला मैसेज कौन से ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट को गया था, ठीक है.
अच्छा जी, एंड देन वी एसोसिएट द डायरेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर मैसेज के साथ, मैसेज तो हमने सिर्फ ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्योंकि हम शो कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर डायरेक्शन नहीं देते, लेकिन मैसेज के ऊपर हम डायरेक्शन दे देते हैं। वो डायरेक्शन क्या बताती है कि ये किस क्लास से किस दूसरी क्लास को जा रहा है मैसेज। ओके जी, सो दिस इज एन अगेन अ कोलैबोरेशन डायग्राम एग्जांपल। सिनेरियो क्या है कि यू आर रिफ्रेशिंग द आइकॉन्स इन अ फोल्डर विंडो, ठीक है। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर दैट वी it starts with this refresh call, यानी कि जो पहला मैसेज आया दैट इज रिफ्रेश। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि एक सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम आपकी हमेशा स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं फाउंड मैसेज, ठीक है। सो देयर इज एन एरो कमिंग इनटू द सीक्वेंस डायग्राम जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी पूरी सीक्वेंस डायग्राम स्टार्ट हो जाती है। सो मे बी दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग हियर, ठीक है। सो वी हैव दिस रेंडरर जिसको मैसेज आया रिफ्रेश का, ठीक है। अब रेंडरर, दीज आर ऑल क्लासेस, ठीक है। ये अगर आप देखें, अब यहाँ पे हमें इंस्टेंस बनाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। रेंडर के केस में उसका इंस्टेंस ज़रूरी नहीं है क्योंकि रेंडर इज समथिंग विच इज़ रेंडरिंग ऑल द थिंग्स। लेकिन विंडोज़ के केस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाने का मकसद क्या है कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ क्लास विंडो इज बीइंग रिफ्रेश्ड, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लिखने से, क्योंकि हमारा ये पूरा सिनेरियो जरा क्लियर हो जाता है, दैट्स वाई वी रिटन दी नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हो क्या रहा है कि रिफ्रेश आइकन्स की कमांड आई है एक पर्टिकुलर विंडो के लिए। अब हमने ये जो ऑब्जेक्ट का नाम था एज ए पैरामीटर हमने पास कर दिया, ठीक है। अभी आइकॉन मैनेजर की क्लास क्या कर रही है, व्हाट इट्स डूइंग, इट्स बेसिकली क्रिएटिंग आइकॉन्स, ठीक है। जब आपने क्रिएट किया नया आइकॉन तो आपने बिटमैप जनरेटर की क्लास को कॉल किया जिसने कि बेसिकली आपके उस आइकन को क्रिएट किया। फिर ये जो विंडो की है ये क्या कर रही है कि इट्स डूइंग ऐड सेल्फ, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये अपने उसी ऑब्जेक्ट के अंदर नया आइकॉन ऐड कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अगेन अ कोलैबोरेशन डायग्राम जो कि आपको बताती है कि जब व्हेन यू विल एक्चुअली राइट द कोड फॉर इट, तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द डिजाइन पैटर्न दैट यू विल हैव, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कोलैबोरेशन डायग्राम, इस एग्जांपल से भी हमें पता लग जाता है कि हमारी मैसेज पासिंग कैसे हो रही है डिफरेंट क्लासेस के दरमियान या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ओके जी, नाउ लेट्स लुक एट दैट कि हम अपने मैसेजेस को कैसे एनोटेट कर सकते हैं, ठीक है। मैसेजेस के अंदर आपके गार्ड आ सकता है, ठीक है। दिस इज अगेन सेम टू द सीक्वेंस डायग्राम्स कि आपके हर मैसेज से पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन जब ट्रू होती है तब वो मैसेज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जाएगा, ठीक है। देन यू कैन हैव द सीक्वेंस नंबर जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। एंड देन हम इसके साथ कोई रिटर्न वैल्यू भी एसोसिएट कर सकते हैं। मैसेज नेम के बाद अगर इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो उसका मतलब होगा कि कोई रिटर्न वैल्यू भी आएगी। ओके जी, व्हाट आर द इश्यूज विद कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है जी। नेम सेपरेटेड बाय कॉमास विद राउंड ब्रैकेट्स, टाइप ऑफ द मैसेज फ्लोज, or we have these synchronous asynchronous messages between different objects. We can also show multiplicity of the objects, देखिए। ओके जी, इस तरह ये देखें कि अगर आपको क्लास डायग्राम्स याद हो तो क्लास डायग्राम के अंदर हम ये वाला काम कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू क्लासेस, वेदर इट्स 1 to many or 0 to 1, you know, what is it, we can do that. So similar is the case in a collaboration diagram. We can have this information. Then what's the issue? The issue is that how can messages sent to a multiplicity of objects be represented? ठीक है, we'll have a look at that. अच्छा, remember this issue and then we will, when we discuss in the following slides, you should get an answer to that. अच्छा जी, so आपके जो simple type के messages होते हैं, ठीक है, they are normally shown like that, ठीक है. They indicate the flow of control. Sender waits until the receiver processes message, or by default this is the kind of message that is sent and shown by an empty arrow, ठीक है, यानी कि जो आपका arrow head है that is empty. So this is a simple message. जो आपकी synchronous call होती है, it indicates nested flow of control, ठीक है, used to ensure that the state cannot be compromised by external factors, for example not interrupted by operating system. यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट से जब ये वाला मैसेज चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आगे जितने भी मैसेज होंगे वो सारे नेस्टेड हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला क्लास अब उस वक्त तक वेट कर रही है, इसको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि ये वाला काम पूरा ना हो जाए, ठीक है।
and it is shown by this filled arrow. ठीक है, this is how synchronous messages are shown. ठीक है, asynchronous messages, these are normally signals. ठीक है, क्योंकि एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को शायद सिग्नल भेज सकती है, तो asynchronous messages को हम इस तरह हाफ एम्प्टी एरो से नॉर्मली शो करते हैं. ओके, अच्छा, now we said that we can have multiplicity, we can show the multiplicity in the collaboration diagrams. तो इस केस के अंदर what's happening is कि a server object needs to send a message to each user logged in and another message to the audit object which keeps a track of message sent. ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे ये send warning करना चाहता है और इसने ये जितने यूजर्स हैं सबको वार्निंग भेजनी है. ठीक है, तो अगेन जो हमने शुरू में देखा था कि व्हाट विल हैपन कि अगर आपने एक ही मैसेज मल्टीपल लोगों को भेजना है, तो ये देखें यहाँ पे अब हमारा रिलेशन क्या बन गया कि एडमिन का यूजर के साथ वन टू मैनी का रिलेशनशिप है. एडमिन तो एक ही है लेकिन देयर विल कैन बी मल्टीपल यूजर्स हु आर लॉग्ड इन. तो व्हेन ही सेंड दिस मैसेज, सेंड वार्निंग, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इट शोज कि द मैसेज इज सेंट टू ऑल द यूजर्स हु आर लॉग्ड इन. सिमिलरली हमने यहाँ पर जब देख रहे हैं हम, तो ये वाला जो सेंड मैसेज है, अगेन दिस इज अ मैसेज टू दिस ऑडिट, लेकिन इसके अंदर वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग इट. ठीक है, दिस इज नॉट सेंड टू ऑडिट की एक ही इंस्टेंस है जिसको आप बस भेज रहे हैं. वेयर इज इन केस ऑफ यूजर यू हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस और यू आर सेंडिंग दिस टू एवरी इंस्टेंस. ठीक है जी, हु इज लॉग्ड इन इनटू द सिस्टम. ओके जी, दिस इज एन अदर एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम. अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर अगेन ये हमने वही जो हमने शुरू में एक पिछले लेक्चर के अंदर वी सॉ एन एग्जांपल कि हाउ यू मेक अ फोन कॉल. ठीक है, तो व्हाट वी यूज टू, उसके अंदर हमारा जो सीक्वेंस डायग्राम बनी थी वो कुछ इस तरह से बनी थी कि वी हैड अ कॉलर एंड वी हैड फोन. ठीक है, एंड वी हैव रेसिपिएंट. और जो कॉलर था ही वाज बेसिकली डूइंग डिफरेंट थिंग्स फ़ोन के साथ, और फ़ोन से इसको रिप्लाई आ रहे थे. एंड जब रिंग गई तो इधर भी चली गई, इधर बेसिकली रिंग टोन गई और इधर डायल टोन आ गई. ठीक है, and then you basically started communicating. This was the sequence diagram that we did in the previous lecture, and this is the collaboration diagram for that. So the first thing that is happening is what are the objects in this case? We have the buttons on the phone, we have the dialer, ठीक है, we have the speaker, ठीक है, we have the cellular radio display and the send button. ठीक है, अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमने बटन्स कौन से पहले दबाने शुरू किए, जो कि डायल तो नंबर दबाना शुरू कर दिया. ठीक है, अब ये यहाँ पे ये जो स्टैटिक है, दिस इज एक्चुअली टेलिंग कि आप उस वक्त तक नंबर दबाते जा रहे हैं डायलर के ऊपर जब तक कि आपका नंबर कंप्लीट नहीं हो गया. ठीक है, अब और अगेन दीज आर नॉर्मल मैसेजेस. हम वी आर नॉट सेइंग कि दीज आर सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मैसेजेस, ये दीज आर सिंपल मैसेजेस दैट वी आर शोइंग इन दिस कोलैबोरेशन डायग्राम. जब आपका नंबर मिल गया तो आपने सेंड वाला बटन दबा दिया. सेंड का बटन क्या इंडिकेट करेगा कि अब आपका नंबर कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब इसके बाद आपको नया काम जो करना है दैट शुड बी 2.1 और समथिंग. ठीक है, और जब आप नंबर मिलाना शुरू किया था आपने, फॉर एग्जांपल योर नंबर वाज 212, लेट्स से, जब आपने 2 मिलाया तो उसके बाद एक तो क्या हुआ कि आपका डिस्प्ले डिजिट, आपके डिस्प्ले के ऊपर एक तो 2 आ गया. ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ कि आपके स्पीकर में से या आपके जो फ़ोन के अंदर से जो टोन आ रही थी, जो डायल टोन थी, वो आना बंद हो गई. ठीक है, क्योंकि आपने अब एक नंबर मिलाना शुरू कर दिया. तो दिस 1.1 एंड 1.2 दे आर स्टार्टेड व्हेन यू हैव स्टार्टेड प्रेसिंग दोज बटन्स. ठीक है, और जब आपने सेंड दबाया तो क्या हुआ है, आप कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और जब आपने ये किया तो आपका डिस्प्ले को भी क्या शो करना है कि यू आर यूजिंग द फोन. ठीक है, सो वंस अगेन अगर आप इस कोलैबोरेशन डायग्राम को भी देखें तो अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, वी आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड कि हाउ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद और दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. ओके जी, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम. इट इज ऑफ डिजिटल साउंड रिकॉर्डर. ठीक है, इसके अंदर द क्लासेस that we have a clock view, we have alarm clock and the setting time user mode, we have the graphic context, we have display, keyboard, event proxy and the user interface. So these are the different classes or the different objects in this case. अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कोलैबोरेशन डायग्राम्स के अंदर, जो कि हमने शायद पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन आई वांट टू एम्फसाइज दैट अगेन कि वी हैव दीज क्लासेस. ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर से ये सारे मैसेजेस हटा लें, ये जितनी भी नंबर्ड आइटम्स हैं और ये एरोज हैं, तो इट इज़ एसेंशियली अ क्लास डायग्राम. ठीक है, क्योंकि ये जो लिंक्स हैं बिटवीन, जो कि इन
रेक्टेंगल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, यू नो दीज लिंक्स, ठीक है, जिससे मैंने एक को ये हाईलाइट करने की कोशिश की है, दीज आर ऑल एसोसिएशंस, ठीक है। ये हमने कहा था कि कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, वी हैव दोज क्लासेस, we have associations between different classes which are, you know, these links, and then the messages flow on these associations or on these or through these links, ठीक है। तो let's quickly see कि ये collaboration diagram क्या कर रही है, ठीक है। So as soon as a key is pressed on the keyboard, तो a message is sent from the keyboard to event proxy, which basically says कि what is the event, ठीक है, what has happened through the keyboard, ठीक है। अब यूजर इंटरफेस क्या कर रहा है, यूजर इंटरफेस से एक मैसेज जा रहा है इवेंट प्रॉक्सी को, विच इज बेसिकली इट इज कंटिन्यूसली पोलिंग फॉर गेट इवेंट, ठीक है, कि व्हाट इज द न्यू इवेंट, टेल मी द न्यू इवेंट, ठीक है। अब यूजर इंटरफेस को जैसे ही वो नया इवेंट मिल गया तो उसने क्या कर दिया, इट इज बेसिकली अपडेटिंग इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो की थी वो अप की थी, ठीक है, इसके अंदर जिस तरह की इज इक्वल टू अप, तो इट इज बेसिकली सेटिंग टाइम यूजर मोड, तो वो एक उस पर्टिकुलर क्लास की तरफ चला गया विच इज सेटिंग द टाइम यूजर मोड, ठीक है। और जब ये काम करना था तो द नेक्स्ट मैसेज इज बेसिकली टू अलार्म क्लॉक विच इज सेइंग सेट टाइम, ठीक है। और अगेन अलार्म क्लॉक की तरफ से एक मैसेज आ गया जो कि इवेंट प्रॉक्सी है, विच इज बेसिकली कलेक्टिंग ऑल द इवेंट्स विच इज इन दिस केस पोस्ट इवेंट, और वो नया टाइम आ गया कि क्या नया टाइम आप सेट करने जा रहे हैं। एक तो ये मैसेज आया, ठीक है, और अगेन यूजर इंटरफेस इज कॉन्टिन्यूसली पोलिंग, तो उसने क्या किया, गेट इवेंट किया, उसको पता लगा कि यार अच्छा ये नया इवेंट ही आ गया, देन इट सेंट एन अपडेट टू द क्लॉक व्यू, ठीक है। और क्लॉक व्यू ने क्या किया, वो टाइम गेट किया फ्रॉम द अलार्म क्लॉक, और ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट इज बेसिकली ड्रॉन दैट, ठीक है। तो अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर इज दैट whatever view you have or whatever classes you have, ठीक है, the collaboration diagram it just represents, कोई भी आप एक सिनेरियो उठा लें, ठीक है, जिस तरह अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वही एग्जांपल्स जो हमने शायद पिछले लेक्चर में भी की थी, जिसके अंदर एक हमने किया था ATM से कैश विड्रॉ करने वाली एग्जांपल, एंड मे बी द अदर वन वी विल लुक एट इज द पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें पेशेंट डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कराने की कोशिश करें। विल डू दैट एग्जांपल्स एंड यू विल सी के द पर्पस ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम इज नॉट टू गेट कि कौन सा मैसेज किस ऑर्डर, we want to know the interaction between the objects, this is the basic purpose, ठीक है। लेकिन उस इंटरेक्शन को हम उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि ये कॉल्स का फ्लो क्या होगा, किस ऑब्जेक्ट से किस दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल किस तरह से जाएगी और कैसे जाएगी, और सेल्फ कॉल्स जो होंगी वो कहाँ पे होंगी, ठीक है। तो दिस हेल्प्स अस इन डिफाइनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर क्लासेस एज वेल, ठीक है। Okay ji, now let's look at this diagram, and then it will follow, we'll do our own examples after that, we'll do more examples जो कि we'll do our examples जो कि हमने पिछले lecture में की थी, we'll do those examples after this, ठीक है। Now this is that, इसके अंदर ये हमारी जो क्लास है that is user interface, ठीक है, और ये हमारी वो particular window है, ठीक है। और जो इसमें टॉप लेवल का मैसेज है we have assigned it number 1.1, ठीक है, ठीक है। और अब अगर आप निचले मैसेजेस को देखें तो एडिशनल डॉट्स पर लेवल अवे फ्रॉम द यूजर इंटरफेस, इसके अंदर जितने भी आपके जैसा 1.1.1 जो है दैट इज द नेक्स्ट लेवल, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर एक नई विंडो लेट से खुल जाती है, ठीक है। तो दीज मैसेजेस एक्चुअली आर शोइंग दैट, ठीक है। तो पहला मैसेज क्या आया यूजर इंटरफेस के ऊपर, आपने क्या किया, मेक रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। वो रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट क्या गई, किसी भी होटल चेन में से उसकी एक चेन को आपने पिक किया, और फिर आपने उसका एक पर्टिकुलर होटल को पिक कर लिया। फॉर एग्जांपल हमारे जो चेन ऑफ होटल्स हैं उसके अंदर मैरियट की पूरी चेन ऑफ होटल्स है, सेरीना की चेन ऑफ होटल्स है, पीसी की चेन ऑफ होटल्स है। फॉर एग्जांपल आप पीसी भूरबन के अंदर जाके बुकिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने चेन पिक की, देन यू सेंड द सेम रिजर्वेशन रिक्वेस्ट टू अ पर्टिकुलर होटल विच इज इन भूरबन, ठीक है। अब यहाँ पे गई तो उसके बाद आपने क्या किया, अब आपके मैसेजेस जनरेट हुए, पहला तो आपने चेक किया कि इज रूम, ठीक है, पहली बात तो आपने चेक की कि रूम अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। और एक और कॉल क्या हो रही है कि आप हर दिन हर रूम के लिए, अगर आप ये वाला मैसेज देखें, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, ये जो आखिर में मैसेज लिखा हुआ है इसको आई विल राइट इट हियर एज वेल, कि जब आपने एक पर्टिकुलर होटल को रूम रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट की तो एक चीज़ तो वो रिजर्वेशन करने से पहले चेक करेगा कि रूम अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन इस मैसेज से पहले एक सेल्फ कॉल है, ठीक है, विच इज़ अ लूप गोइंग ऑन, वो जो कि हमें क्या बता रहा है कि जो आपकी होटल की क्लास होगी ना, ठीक है, उसके अंदर एक प्राइवेट फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, जो कि हर रूम की अवेलेबिलिटी को सेट करता है,
ठीक है। तो इट बेसिकली रन्स, इसके अंदर एक लूप लगा हुआ है जो कि सारे रूम्स के लिए क्या कर रहा है, हर एक का वेरिएबल सेट कर देता है। अगर तो रूम अवेलेबल है तो उसके आगे ट्रू कर देता है, अगर रूम अवेलेबल नहीं है यानी कि इट्स ऑलरेडी बुक तो उसके आगे फॉल्स है। तो यहाँ पे ये जो स्टैटिक लगा हुआ है यानी कि इस मैसेज के आगे यहाँ पे अगर आप देखें स्टैटिक है, तो ये क्या बता रहा है कि दिस इज एन आइटरेशन एंड दिस सेल्फ कॉल वुड बी डन फॉर ईच रूम एवरी डे, क्योंकि आपको बता रहा है कि जी यू बेसिकली अपडेट द स्टेटस ऑफ ईच रूम। सो इफ द रूम इज अवेलेबल तो एक नोटिस कंफर्मेशन का चला जाएगा विच विल बी सेंट टू द कस्टमर, ठीक है। तो अगेन इस डायग्राम के अंदर हमें मल्टीपल चीज़ें पता लगी। एक तो हमें पता लगा कि अगेन हमें पता लगा कि उसका अंदर का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर ये जो मैसेजेस की सीक्वेंस नंबरिंग हमने की हुई है, इट टेल्स अस कि हाउ फार मैसेज इज फ्रॉम यू नो क्या यूजर इंटरफेस के आप किस लेवल पे जाते जा रहे हैं। तो यू स्टार्टेड ऑफ विद बेसिक विंडो जिसके अंदर आपके पास रिजर्वेशन की ऑप्शन आई और उसके अंदर फिर आपको आ गया कि कौन सी चेन के अंदर आपने रिजर्व कराना है, फिर आपने कहा दिया किस पर्टिकुलर होटल के अंदर आपने रिजर्व कराना है, फिर आपने रूम जब बुक करने की किया तो फिर हमें पता लगा कि यार ये तो होटल डेली अपना स्टेटस चेक करता है कि कौन से रूम आज अवेलेबल हुए हैं कौन से नहीं हुए, ठीक है। और देन वी बेसिकली सेंड दैट रिजर्वेशन रिक्वेस्ट और अगर वो सक्सेसफुल होगी तो वी सेंड अ नोटिस टू द कस्टमर। सो this was another example of collaboration diagram. Now we'll do the examples that we did in the previous lecture, so you can try to relate collaboration diagrams with the system sequence diagrams. अच्छा जी, the first example that we did was for withdrawing cash from an ATM. ठीक है, तो what we are doing here is we are trying to draw a collaboration diagram. ठीक है, and what we are doing is it's basically for withdrawing cash from ATM. अच्छा जी, अगर हम इस केस के अंदर देखें तो हमारे कौन कौन ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स से हमारा एक ऑब्जेक्ट है यूज़र, ठीक है, और यूज़र का ATM के साथ भी कोई लिंक है, ठीक है, और फिर हमारा ATM का आपके बैंक के साथ भी कुछ लिंक है। अच्छा जी, ओके। अब क्या हो रहा है कि यूज़र ने सबसे पहला क्या किया, यूज़र ने सबसे पहला मैसेज शायद जो भेजा ATM को, वो उसने क्या किया, इट हैज़ एंटर्ड द पिन, ठीक है। जब उसने पिन एंटर की तो ATM से शायद अगली रिक्वेस्ट चली गई बैंक की तरफ के वैलिडेट पिन, ठीक है। अगर तो पिन आपकी सही थी, ठीक है, अब ये मैसेज इधर को जा रहा है, ये मैसेज नीचे जा रहा है, ठीक है। इधर से शायद एक मैसेज ऊपर ATM को चला गया कि पिन वैलिडिटी का जो भी स्टेटस था वो चला गया, ठीक है, ठीक। और ATM ने क्या किया, अच्छा हमें ये बार बार ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, दिस लिंक वाज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम्स। ओके जी, ओके जी। सो फिर ATM से क्या चला गया, पिन वेरिफिकेशन का एक इसको वापस मैसेज आ गया। ओके जी, अब नेक्स्ट चीज़ क्या हो रही है कि नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ कि यूज़र ने एक और रिक्वेस्ट भेजी जो कि हम कहते हैं मैसेज नंबर 5 था। उसने कहा विदड्रॉ कैश, ठीक है। यहाँ से फिर ATM ने क्या किया, बैंक को भेजा विच वॉज बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी भी की और ये इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, विदड्रॉ की डायरेक्शन इधर की तरफ है। बैलेंस इंक्वायरी की तो इसको ऊपर की तरफ क्या स्टेटस मिलेगा, एक और मैसेज जनरेट हुआ जो कि हम कहते हैं नंबर 7 है कि बैलेंस स्टेटस अपडेट ATM की तरफ चली गई, ठीक है। और फाइनली ATM ने क्या शो किया, डिस्प्ले कैश विथड्रॉन में भी उसका एरो इस तरफ हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेकिन दिस वाज वन वे ऑफ ड्राइंग इट्स कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है। जिसके अंदर हो क्या रहा है कि आप यू हैव एंटर्ड पेन, ठीक है, और यूज़र ने पेन एंटर की है, आपने यूज़र को पेन की अगर गलत आया तो आपने उसको नोटिफाई भी कर दिया, ठीक है, और आपका बैंक के साथ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यू एक्चुअली नो कि इस सिस्टम के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किस, अब इसके अंदर जो हमने नंबरिंग भी किया मैसेजेस की, वो हमें ये बता रही है कि इस पूरे इंटरेक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स किस ऑर्डर के अंदर आप इसमें बातचीत करेंगे। उनकी टाइम ऑर्डरिंग अगेन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन यू आर इंटरेस्टेड इन द इंटरेक्शन और द सीक्वेंस इन विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके जी,
दूसरी एग्जांपल हम क्विकली देख लेते हैं. व्हाट वी डिस्कस्ड वाज द पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, और पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने क्या किया था. अच्छा, वन मोर थिंग कि the collaboration diagram that I have drawn for this ATM system और withdraw cash की जो हमने collaboration diagram बनाई है उस पूरी interaction के लिए, now this can be done in a slightly different way as well. ठीक है, in fact I remember I've seen this diagram in one of the books जिसका नाम है Mastering UML, and the same diagram can be drawn in a different way. ठीक है, they have made slightly more interactions in that particular diagram, but whatever your understanding of the system is, you can make a collaboration diagram depending on that. ठीक है, so again let's look at this example जो कि हमारी थी. Let's look at this example of patient management system, और इसके अंदर हमारा क्या है, the interaction that we are trying to draw is make an अपॉइंटमेंट. ठीक है, अच्छा जी. अब हम कहते हैं कि जी यहाँ से एक मैसेज आया अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट का, हमारे सिस्टम को एक मैसेज आया. ठीक है, अच्छा, अब हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन है, हमारे सिस्टम के अंदर शायद एक, अच्छा ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वी विल हैव जस्ट अ स्ट्रेट एरो. ठीक है, और हमारे पास डॉक्टर्स हैं. ठीक है, अच्छा, ये सिस्टम के पास, सिस्टम का भी इस पूरे स्केड्यूल के साथ लिंक है और डॉक्टर का भी हर स्केड्यूल के साथ लिंक है. So let's say this is a simple diagram. These are the classes in this particular collaboration that we're interested in. और now we want to know कि ये किस सीक्वेंस के अंदर अगर एक पेशेंट अपॉइंटमेंट बुक करने की रिक्वेस्ट भेजता है तो हाउ इट विल लुक लाइक. ठीक है, तो पहला मैसेज हमने कह दिया कि जी क्या आया, जिसके बाहर से इसको एक मैसेज आ रहा था अपॉइंटमेंट का. ठीक है, अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ने चेक करना है कि अच्छा, पहली बात तो सिस्टम ये देखेगा कि ये जो डॉक्टर है ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता. ठीक है, तो मे बी देयर वुड बी अ सेल्फ कॉल हेयर. ठीक है, एक सेल्फ कॉल होगी, वो सेल्फ कॉल क्या करेगी कि ये बेसिकली डॉक्टर की आईडी निकालेगी. जो भी पेशेंट ने रिक्वेस्ट किया उसके अंगेज इसने एक डॉक्टर की आईडी निकाल ली. ठीक है, मे बी दिस इज द फर्स्ट मैसेज. सेकेंड मैसेज क्या चला जाएगा कि आप चेक कर रहे हैं डॉक्टर की अवेलेबिलिटी. ठीक है, अब डॉक्टर की अवेलेबिलिटी जो चेक करनी है इसकी डायरेक्शन है इस तरफ. ठीक, अब जब ये किसी भी आपने रिक्वेस्ट गई है तो यहाँ से उसने क्या चेक किया, ही बेसिकली वांट्स टू चेक हिज स्केड्यूल कि उसके स्केड्यूल के अंदर वो डे खाली था भी कि नहीं था. ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर शायद पैरामीटर आ गया टाइम का. ठीक है, अब जब उसने अपना स्केड्यूल चेक किया और स्केड्यूल से यहाँ पे सिस्टम को एक रिक्वेस्ट चली गई कि गेट स्केड्यूल फॉर माई आईडी. ठीक है, तो यहाँ से शायद सिस्टम इस एरो की डायरेक्शन इधर ऊपर की तरफ है और शायद एक फोर्थ यहाँ से वापस आया कि स्टेटस आ गया आपका, यहाँ का बेसिकली आपका स्केड्यूल ये आ गया वापस आपके पास और इसकी एरो की डायरेक्शन ये है. जब आपने अपना स्केड्यूल देखा आपको पता लग गया कि यार स्लॉट एम्प्टी है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे वापस भेजा जो कि आ गया कि जी शायद पांचवा मैसेज आ गया कि स्लॉट स्टेटस का मैसेज आ गया कि आपकी स्लॉट वो अवेलेबल थी कि नहीं थी. वट एवर द मैसेज इज, डॉक्टर क्या इसके बाद करेगा कि डॉक्टर की ये जो लिंक था डॉक्टर वाला, इससे एक एरो की डायरेक्शन इधर को होगी और इसके ऊपर नंबर 6 पे शायद मैसेज आ रहा है कि अपॉइंटमेंट स्टेटस. ठीक है, जो भी एक रिक्वेस्ट थी जो कि कस्टमर ने एक आईडी भेजी थी, उसकी जो भी आईडी थी उसके साथ एक उसकी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट थी और सिस्टम से फिर चला जाएगा एक एरो वापस जो कि शायद कंफर्मेशन के लिए चला जाएगा, जो कि हम कहते हैं हमारी कंफर्मेशन की एक क्लास है. और एक 7 मैसेज आ रहा है जो सेंड कंफर्मेशन जो कि आपके सिस्टम से जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो अगेन दिस इज अगेन वेरी सिंपली ड्राइंग द कोलैबोरेशंस और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट क्लासेस. ठीक है, जिस तरह हमने कहा जी हमारा एक सिस्टम का मेन क्लास है जो कि क्या कर रही है, जो कि हर डॉक्टर की उसके पास स्टोर्ड है कि कौन से डॉक्टर की क्या आईडी है और सिस्टम का
दूसरा रिलेशनशिप क्या है, एक तो डॉक्टर के साथ है, उसका स्केड्यूल के साथ भी है, क्योंकि उसके पास एक डॉक्टर का नहीं सारे डॉक्टर्स के स्केड्यूल्स मेंटेन है, ठीक है। और हर डॉक्टर भी अपने पास अपना स्केड्यूल सिर्फ एक दिन का रखता है, ठीक है। अगर उसको अगले 4-5 दिनों का स्केड्यूल चाहिए तो ही विल रिक्वेस्ट द स्केड्यूल क्लास, और स्केड्यूल क्लास शायद सिस्टम से लेगी, बट देन इट विल नोटिफाई द डॉक्टर। तो you will see in this again, this very simple example, it tells us a lot about the internals of these classes and how these objects of these different classes, they will interact with each other. Okay, now I thought it is very interesting because both of these diagrams are very closely related, so we want to kind of discuss or summarize that what is a system sequence diagram and what is a collaboration diagram. Okay जी, so let's say कि हम we divide it into 2 columns, इसके अंदर हम system sequence diagrams और इसके अंदर हम collaboration diagrams को लिखते हैं। अच्छा, system sequence diagrams क्या करती हैं? पहली बात तो ये है कि both of them they are interaction diagrams, ठीक है। system sequence diagram is an interaction diagram, और जो आपकी collaboration diagrams है they are also interaction diagrams, ठीक है, क्योंकि दोनों objects के दरमियान interaction बताती हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम का एम्फेसिस क्या होता है? इट एम्फसाइजेस ऑन टाइम ऑर्डरिंग ऑफ मैसेजेस, कि किस ऑर्डर के अंदर, टाइम के अंदर, किस टाइम ऑर्डरिंग में कौन सा मैसेज पहले गया, कौन सा मैसेज फॉलोड इन। वेयर एज इन केस ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम वी आर इंटरेस्टेड इन इंटरेक्शन सीक्वेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दोनों के अंदर हम अपने मैसेजेस को नंबर तो करते हैं, ठीक है, लेकिन सिस्टम सीक्वेंस के अंदर हमारे इंटरेस्ट क्या होता है? टाइम ऑर्डरिंग के अंदर। वेयर एज इन द कोलैबोरेशन हमारा मकसद क्या है कि वी वांट टू नो द सीक्वेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट इस पूरे इंटरेक्शन के अंदर आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एंड ऑल्दो वी सॉ कि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर हम लूप्स भी शो कर सकते हैं और ब्रांचिंग भी शो कर सकते हैं, बट आइडियली इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट। आइडियली system sequence diagram not suitable for looping, ठीक है, और branching, ठीक है। whereas in case of collaboration diagram ये काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, can be done fairly easily, ठीक है। और कोलैबोरेशन डायग्राम्स के अंदर क्या होता है? एक चीज़ जो हमने पढ़ी कि कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर इट्स एसेंशियली अ क्लास डायग्राम, ठीक है, जिसमें जो लिंक्स हैं वो एसोसिएशंस हैं, और उन लिंक्स के ऊपर हमने कहा है डिफरेंट मैसेजेस जा सकते हैं, ठीक है, और वो मैसेजेस वो फ्लोज होते हैं जो उन एसोसिएशन के थ्रू कोलैबोरेशन डायग्राम्स को लिंक करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ क्विक समरी कि व्हाट इज अ कोलैबोरेशन डायग्राम एंड व्हाट इज अ सिस्टम sequence diagram. Now both of them they are interaction diagrams, both of them they model interaction between ऑब्जेक्ट्स, लेकिन एक के अंदर टाइम ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, एक के अंदर हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस सीक्वेंस के अंदर आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम दे आर सूटेबल व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन टाइम ऑर्डरिंग, ठीक है। इसके अंदर भी हम ब्रांचिंग और लूपिंग कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट आइडियल फॉर इट, ठीक है। कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर वी कैन डू दीज थिंग्स फेयरली इजीली। ओके जी, नाउ लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव कवर्ड इन टुडेज लेक्चर, ठीक है जी। वी डिस्कस द सेमेंटिक्स ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम्स, कि वी हैव ऑब्जेक्ट्स इन इट, वी हैव मैसेजेस इन इट, ठीक है, और वी सॉ कि स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेजेस व्हिच कुड बी सेंट, सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस इंडिकेट, हमने कहा कि हर मैसेज को हम एनोटेट कर सकते हैं उसके सीक्वेंस नंबर के साथ, ठीक है। देन वी सॉ द नोटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स के ऑब्जेक्ट्स दोनों के अंदर, जो सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर भी हमने कहा था रेक्टेंगल की तरह शो करते हैं, कोलैबोरेशन के अंदर भी हमने कहा उसी तरह से शो करते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट का सिग्नेचर किस तरह से होता है कि क्लास के नेम से पहले कॉलन लगा के हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, और द नॉर्मल यूएमएल नोटेशन है कि जो ऑब्जेक्ट का नाम होता है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, ठीक है। फिर मैसेज सिग्नेचर के अंदर हमने देखा बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इन अ मैसेज वी कैन हैव अ गार्ड, ठीक है, ये जो आपका गार्ड है दिस इज बेसिकली अ कंडीशन, ठीक है, कि कब आप ये मैसेज भेजेंगे, ठीक है। देन यू हैव दिस सीक्वेंस नंबर जो कि बताता है कि इस पूरी इंटरेक्शन में ये वाला मैसेज किन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में बातचीत करा रहा है, ठीक है। देन वी कैन ऑल्सो हैव द रिजल्ट, ठीक है, विच वुड से कि इस मैसेज से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। इफ इट्स रिटर्निंग अ वैल्यू तो वी विल बेसिकली असाइन टू वेरिएबल, वी वांट टू असाइन इट टू वेरिएबल, तो हम इस केस में रिजल्ट के अंदर जा रहे हैं। एंड देन फॉलोज द मैसेज नेम, और ये फिर उसकी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है, ठीक है। दिस इज द रिटर्न वैल्यू, और ये जो हमारा है एज इट से दिस इज द मैसेज नेम, ठीक है। और कोलैबोरेशन डायग्राम के हमने जनरली इश्यूज देखे थे
कि हाउ डज इट हैंडल मल्टीप्लिसिटीज, जैसे हमने कहा था, एक एग्जांपल बड़ी सिंपल सी देखी थी कि इफ देयर इज एन एडमिन एंड ही वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू ऑल द यूजर्स, ठीक है, तो हमने देखा था कि वो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि वी हैव समथिंग लाइक, जिस तरह उस एग्जांपल को अगर आप याद करें तो वी हैव एडमिन, ठीक है, और अगर वो एक मैसेज है जो कि मल्टीपल यूजर्स को वो भेजना चाह रहा है, ठीक है, तो हमने कहा था कि वो दैट इज ड्रॉन समथिंग लाइक दैट विच शोज कि देयर आर मल्टीपल यूजर्स, और हम एक ये शो करते हैं और हम कहते हैं कि जी सेंड मैसेज, जो भी मैसेज था इट इज़ बेसिकली दिस विल बी सेंट टू एवरी यूजर, ठीक है। और व्हेन टू यूज दिस कोलैबोरेशन डायग्राम्स, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट, लेकिन लेट्स क्विकली से इट अगेन कि कोलैबोरेशन डायग्राम अगेन दे शो इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स and they are drawn somewhere between the use cases and class diagrams, लेकिन there is different purpose of collaboration diagram and a different purpose of system sequence diagrams, and we saw कि collaboration diagram हमें अपने class के internal structure को refine करने में कितनी helpful साबित होती है, क्योंकि हम अपने जो internal variables बना रहे हैं हमें उससे पता लग जाता है कि कौन से variables हमारे साथ private members होने चाहिए, कौन से public होने चाहिए, तो they are very helpful in that sense and they bridge the gap between the use case diagrams and the class diagrams. I think that is it, and that is as far as we will cover collaboration diagrams in this course. I hope that you understood the difference between system sequence diagrams and collaboration diagrams, and when and where do we have to use them. Inshallah, until next lecture, we'll meet next time, and take care. Assalamu alaikum.